So hello students, I hope you all are doing good. My name is Vineet and I welcome all of you on the YouTube channel. So in the prior video we have discussed the earlier part of this chapter and now we are going to discuss about an early empire. So as I have told you that the earliest empire was Magad Empire, and if I haven't, then let me remind you that the earliest empire was Magad Empire. Okay, so we are going to discuss about an earlier empire that was Magad, and the earliest empire was built by Chandragupta Maurya. ठीक है? Okay, so before starting the video, please make sure to hit subscribe button, like button, comment down if you like the video, and share to your friends if you want them to get good marks in exam and want to pass the exam with them too. Okay, so let's move ahead towards an early empire. So as I have discussed in the prior video that there were 16 महाजनपदास. Okay, so 15 महाजनपद थे हमारे पास in the period of 6th century BCE. Okay, there were 16 Mahajanpadas. Okay, the growth of Magad culminated in the emergence of the Mauryan Empire. Chandragupta Maurya, who founded the empire, extended control as far northwest as Afghanistan and Balochistan, and his grandson Ashoka, gradually the most famous ruler of the early India, conquered Kalinga. So basically मगध की बात करने जा रहे हैं इस वाले में. तो मगध आपको पता है, अगर मैं इंडिया का मैप बनाऊं, मगध इज हियर. ओके, मगध इज प्रेजेंटली बिहार. इन प्रेजेंट टाइम मगध इज बिहार. ओके, सो मगध में इन द ईयर 321 BCE. ओके, एंड दिस इज एन अप्रोक्स डेट. ठीक है, तो अप्रोक्स 321 BCE में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य डायनेस्टी का, मौर्यन एम्पायर का नींव रखा. ठीक है, उनका जो साम्राज्य था वो अफगानिस्तान, बालूचिस्तान तक फैला हुआ था. सो ही वॉज हेयर एंड हिज एम्पायर वॉज टोटल दिस पार्ट. ओके, सो दिस वॉज ऑल कंट्रोल्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य. ठीक है, फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे आते हैं बिंदुसार. बिंदुसार के बाद आते हैं अशोक. अशोका ये कलिंगा वाला रीजन को कैप्चर कर लेते हैं. ओके, तो कलिंगा वाले रीजन को जब वो कैप्चर करते हैं, तो कलिंगा वाले रीजन को कैप्चर करने टाइम वो 1.5 लाख पीपल को स्लॉटर करते हैं. 1.5 लाख लोगों की हत्या करते हैं. ठीक है, और एज वी नो कि अशोका वाज सो फेमस and is so famous in North India these days, and the Ashoka and the emblem and the Indian emblem is okay, so basically this picture as you see is Indian emblem. Okay, so was given by Ashoka. Okay, so he was so famous in North India and उन्होंने कलिंगा वाला जो रीजन है उसको कैप्चर किया. जब इन्होंने कलिंगा वाले रीजन को कैप्चर किया, ओके, तो उसके बाद इनके अंदर धीरे धीरे थोड़ा सा परिवर्तन होता है. ठीक है, और जब इनके फिर ये खुद को इंट्रोस्पेक्ट करते हैं तो पता चलता है इनको कि यार मैंने तो बहुत ज़्यादा ही बुरा काम कर दिया. देन ही रियलाइज व्हाट ही डिड, और फिर वो धीरे धीरे बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो इतना स्टोरी तो हम सबको पता है ना जी. अब देखते हैं आगे की कहानी. फाइंडिंग आउट अबाउट द मौर्यास. हिस्टोरियंस हैव यूज्ड अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ मौर्यन एम्पायर. These include archaeological finds, especially sculpture. Also available are contemporary work such as the account of Megasthenes, a Greek ambassador to the court of Chandragupta Maurya, which serves in fragments. Another source is
often used as the Arthashastra, part of which were probably composed by Kautilya or Chanakya, traditionally believed to the minister of the Chandragupta. Besides, the Mauryas are mentioned in later Buddhist and Jaina texts. Puranic literature, as well as in Sanskrit literary work. While these were useful, inscription of Asoka on rocks pillars are often regarded as among the most valuable sources. तो हम मौर्य का इतिहास जानने आए हैं, है ना। तो मौर्य के बारे में हमें पता कहाँ चलता है? तो भैया ठीक है, मौर्य थे, बहुत बढ़िया। अब इनके बारे में पता कैसे चला? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्यन अंपायर का फाउंडेशन रखते हैं, उनके कोर्ट में, ठीक है, एक ग्रीक एम्बेसडर होता है, सेलिकस निकेटर के द्वारा भेजा होता है। सेलिकस निकेटर ने एक एम्बेसडर भेजा होता है चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, जिनका नाम होता है मैगस्थनीस, ठीक है। तो मैगस्थनीस एक बुक लिखते हैं, बुक का नाम है इंडिका, ठीक है। अब इस इंडिका बुक से हिस्टोरियंस ने बहुत सारी चीज़ों को एक्स्ट्रापोलेट किया, ठीक है, कि कैसे इनका एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करता था, है ना। लेकिन ये जो बुक है वो हमें एकदम सही हालात में नहीं मिली, हमें फ्रेगमेंट्स में मिली है ना। और दूसरा हमें जो सोर्स मिला है वो अर्थशास्त्र, ठीक है। तो कौटिल्य द्वारा, कौटिल्य चाणक्य बोलते हैं और भी एक नाम है इनका, ठीक है, इनके द्वारा एक बुक है अर्थशास्त्र, ठीक है। सो इन दिस बुक इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन कैसे मैनेज करना है वो बताया, ठीक है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के ही कोर्ट में ये एक मिनिस्टर होते थे जिनका नाम है चाणक्य। बेसिकली चाणक्य की हेल्प से ही ये चंद्रगुप्त मौर्य ने महापद्मानंद को टॉपल डाउन किया था, ठीक है, समझ गए। और इसके अलावा हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जैन टेक्स्ट और पुरानी लिटरेचर है, ठीक है, जो कि संस्कृत में है, उनके बारे में, उनसे ही पता चलता है हमें मौर्यास के हिस्ट्री के बारे में। और फिर उनके ग्रैंडसन अशोका इंक्रिप्शन बनाते हैं, अशोका धम्मा। अशोक जब धम्म का प्रोपोगेट करते हैं तो वो पिलर्स बनवाते हैं, रॉक्स पे अपने मैसेजेस को इंस्क्राइब करवाते हैं, पिलर्स इंस्क्राइब कराते हैं। तो ये वैल्यूएबल सोर्सेज है एक हिस्टोरियंस के लिए टू रिकंस्ट्रक्ट देयर हिस्ट्री, ओके। Ashoka was the first ruler who inscribed his message to his subjects and officials on stone surfaces, natural rocks as well as polished pillars. He used the inscription to proclaim that he understood to be Dhamma, which included respect towards elder, generosity towards Brahmins and other those who renounce worldly life, treating slaves and servants kindly, and respect for religion tradition other than one's own. तो अब हमने बोला कि अशोका ने पिलर पे अपने मैसेजेस को इंस्क्राइब करवाया है और रॉक्स पे अपने मैसेजेस को इंस्क्राइब करवाया है, ठीक है। तो अशोका ही पहले रूलर थे, ठीक है, जिन्होंने अपने सब्जेक्ट्स के लिए मैसेज इंस्क्राइब करवाया, ओके, एंड ऑफिशियल्स के लिए, ठीक है, मैसेजेस को इंस्क्राइब करवाया। और जो मैसेज इस अशोका ने इंस्क्राइब कराया वो जगह क्या थी, तो वो मतलब किस चीज़ पर बना के अब अशोका है ए ग्रेट रूलर, अब इन्होंने क्या किया कि इनको मैसेजेस को डिलीवर करना है अपने पीपल्स के बीच, अपने लोगों के बीच में इन्होंने अपने मैसेज को डिलीवर करना है। देन सो हाउ ही विल डिलीवर? सो बेसिकली
ही यूज नेचुरल रॉक्स, मतलब पत्थर इन्होंने बड़े बड़े पत्थरों का भी इस्तेमाल किया है, छोटे पत्थरों का भी इस्तेमाल किया है, और एज वेल एज पिलर्स का भी इस्तेमाल किया भाई साहब ने। ठीक है, ठीक है। तो अब ये मैसेज पे लिखवाते क्या थे, ठीक है, तो ये अपने धम्मा, मतलब धम्मा इज, वी कैन से कि भैया इनके मतलब एक टाइप का अपने बारे में लिखवाए, मतलब अपना तारीफ। बेसिकली देखो मैं बताता हूँ ये क्यों किया था उन्होंने, ठीक है, व्हाट आई फील, जब इन्होंने कलिंगा में, ठीक है, 1.5 लाख लोगों को और 1 लाख से ज़्यादा लोगों को हॉस्टेज बनाया, ठीक है, तो अब इनको पता चल रहा था कि भाई नाउ आई डिड अ बैड वर्क, ठीक है, slaughtering 1.5 lakh people are is not a good task as a king, as a ruler. So now he knows, ठीक है, he knew that now people of my kingdom are not going to accept me after what I have did. So basically to wash out his work, wash out his uh, great work that he did in Kalinga, he used a method जिससे कि ये लोगों को फिर से विश्वास दिला पाए कि यार लिसन, अब मैं चेंज हो चुका हूँ, नाउ आई हैव चेंज्ड, एंड इन्होंने फिर धम्मा का प्रचार करवाते हैं। अब इस धम्मा में क्या है, धम्मा में है कि एल्डर्स का रिस्पेक्ट करना है, ठीक है, देखते रहो जरा, ठीक है, रिस्पेक्ट अपने एल्डर्स का करना है, ब्राह्मण्स का, और वो लोग जिन्होंने दुनिया को मतलब जो बाबा बन चुके हैं, रिनाउंस कर चुके हैं, ठीक है, अपने घर बार सब छोड़ के मुक्ति के लिए बाहर निकले हैं, उन लोगों की हमें, उन लोगों के प्रति हमें जेनरसिटी दिखानी है, ठीक है, अपने स्लीव्स, अपने सर्वेंट्स के प्रति हमें काइंड रहना है ना, और रिलीजन ना ही सिर्फ अपने बल्कि अपने सामने वाले जो भी हमारे सामने खड़ा है, ठीक है, उनके रिलीजन का भी रिस्पेक्ट करना। सो ये उनके धम्मा में था। सो बेसिकली ही जस्ट वांट टू वॉश आउट हिज deeds, that is why he put his dhamma all over the subcontinent, ठीक है, और ये आपको दिख रहा होगा, ये आपको अशोका एम्बलम है, ठीक है, तो ये जो पिलर दिख रहा है ये सारनाथ का है, ठीक है, सारनाथ का पिलर है, ये कैपिटल आपको दिख रहा है, इसमें एक लाइन यहाँ है, एक लाइन यहाँ है, एक लाइन यहाँ है और एक पीछे होगा, ठीक है। सो एज यू कैन अंडरस्टैंड, सो आपको इधर में पीछे में दिख रहा होगा, ठीक है, तो ये कैपिटल में लॉयन है, और ये इसको बोलते हैं शाफ्ट, इसको बोलते हैं अबिस्का, इसके नीचे ये पिलर है, ठीक है, इस पिलर को बोलते हैं शाफ्ट, ठीक है। एडमिनिस्ट्रिंग द अंपायर, अब इनका अंपायर है वो कैसे चलता था उसके बारे में देख ले जरा, ठीक है। There were 5 major political centers in the empire: the capital Patliputra and the provincial centers of Takshila, Ujjain, Toshali, Suvarnagiri, all mentioned in Ashokan inscriptions. If we examine the content of these inscriptions, we find virtually the same message engraved everywhere, from the present day northwest frontier province of Pakistan to Andhra Pradesh, Odisha and Uttarakhand in India. तो हमें देखने को मिलता है ये एक इनका मेन कैपिटल है, ठीक है, जो कि पाटलिपुत्र है, और हमें बाकी प्रोविंस कैपिटल मिलते हैं, ठीक है, तो हमें 4 प्रोविंस कैपिटल मिलते हैं। पहला तो है तक्षशिला, दूसरा है उज्जैनी,
तीसरा है तोशाली, फिर है सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी इज करेंटली कर्नाटका, अपना कर्नाटका वाला रीजन। अब ये चीजें हमें कहाँ से पता चलती है कि भैया ऐसी ऐसी बात है, ये एक मेन कैपिटल है, ये इतने सारे प्रोविंस कैपिटल है, तो ये हमें इसके इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, ठीक है। और पता चलता है कि वर्चुअली सेम मैसेज ही इन्होंने इनग्रेव कर रखा है हर, मतलब पूरे ऑल ओवर द टेरिटरी जहां पर ये रूल कर रहे हैं, ठीक है। कुड दिस वास्ट अंपायर, सो हियर इज अ क्वेश्चन, कुड दिस वास्ट अंपायर हैव हैड अ यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम? Historians have increasingly come to realize that. Okay. So देखो पहले एक बार इनका थोड़ा कौन कौन सा प्रोविंस कैपिटल थे। तो ये पहले तो ये इधर देखो, इधर में देख रहे हो, इधर में देखोगे तो ये तक्षशिला, पी लगा रहा हूँ मैं इनके प्रोविंस कैपिटल के लिए, ये प्रोविंस कैपिटल है। इधर में आओ तो ये पाटलिपुत्र तो इनका मेन कैपिटल होगा, ये रहा, ये तो भैया मेन कैपिटल है, ये मेन लिख देता हूँ मैं एम। इधर में आओ तो सुवर्णगिरी दिखेगा, पहले तो उज्जैनी ही रहा, ये भी प्रोविंस कैपिटल है, ठीक है। और इधर में आओ तो क्या दिखेगा आपको, सुवर्णगिरी। तो सुवर्णगिरी इसमें नहीं है क्योंकि ये जो है, ये जितने भी, ये जो आपको ये मैप दिख रहा है वो बेसिकली किसके ऊपर है, ठीक है। तो ये बेसिकली मैप दिखा रहा है, ये इनके पिलर और जो रॉक इंस्क्रिप्शन है उसके ऊपर, ठीक है। तो याद रखना मेजर पिलर इंस्क्रिप्शन कितने हैं, तो 14 पिलर इंस्क्रिप्शन है मेजर, ठीक है। सॉरी, मेजर रॉक इंस्क्रिप्शन कितने हैं, 14, ठीक है। और 10 लोकेशन कितनी है, 10 लोकेशंस पे 14 रॉक एडिक्ट्स मिले हैं, ठीक है। और ये पिलर इंस्क्रिप्शंस आप देख लो, ये जो ब्लू है, तो कहाँ कहाँ पे पिलर इंस्क्रिप्शन मिले हैं, तो टोपारा, मेरठ, ठीक है, रुमिंडी, सॉरी निकाली सागर, रुमिंडी नहीं, रामपूर्वा, लौरिया, लौरिया अराज, ठीक है, सासाराम, आरौरा, कौशंबी, गुर्जरा, सांची, सारनाथ। यहाँ पे क्या क्या मिला है, तो यहाँ मिला है हमें पिलर इंस्क्रिप्शन, ठीक है। अब आपको एक बात बताऊं, तो ये जो रुमेंडी वाला पिलर इंस्क्रिप्शन है, ये वाला जो पिलर इंस्क्रिप्शन है रुमेंडी वाला, है ना, तो आपको दिख रहा होगा ये लुम्बिनी के पास है, ठीक है। तो रुमेंडी वाले पिलर में इन्होंने बोला है कि देखो भाई ऑफिशियल्स, अशोका ने मैसेज क्या दिया है वो समझो। तो अशोका ने बोला है कि इस जगह से कोई भी टैक्स आप कलेक्ट नहीं करोगे, एंड इफ यू आर डूइंग सो ट्राई टू मिनिमाइज, ठीक है। जितने भी लेवी है, जितने भी टैक्स है वो आप मिनिमाइज करो, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया ये बताओ कि क्या जो इतना बड़ा अंपायर है, क्या उसके अंदर यूनिफॉर्म रूल होता होगा, मतलब जैसा पावर कंट्रोल आपको मेन कैपिटल में दिख रहा है, दैट इज पाटलिपुत्र, हाँ, क्या वही सेम कंट्रोल आपको प्रोविंस कैपिटल में दिख रहा होगा? ऑब्वियस सी बात है, नहीं होगा भाई। बताओ, जितना पावर कंट्रोल आपको, मतलब जितना पावर कंट्रोल आपको सेंटर के इर्द गिर्द में होगा, राजा का जो मेन ज्यादा इन्फ्लुएंस कहाँ पे होगा, ऑब्वियसली मेन कैपिटल के पास। प्रोविंस में इनका जो पावर कंट्रोल होगा कंपैरेटिवली जो पाटलिपुत्र है या फिर जो मेन कैपिटल है वहां से कम होगा। सो इज अनलाइकली द रीजन्स इंक्लूडेड विद इन द अंपायर वर जस्ट टू डाइवर्स। इमेजिन द कॉन्टैक्ट बिटवीन द हिली टेरेन ऑफ अफगानिस्तान एंड द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। इमेजिन करो भैया, एक अफगानिस्तान में है इनका कैपिटल कांधार,
कांधार से लेकर यहाँ पे उड़ीसा में कलिंगा तक कैसे कैसे क्या से कांटेक्ट बनाएंगे? हाउ विल द किंग और हाउ विल द रूलर कम्युनिकेट बिटवीन द टू डिस्टेंट लैंड? ठीक है, इफ यू लुक अफगानिस्तान देयर आर हिल्स, हाँ, if you look Odisha, here is coast near the Bay of Bengal coast. Okay, so Odisha is situated where? Near the Bay of Bengal. तो बुक भी कहती है आपकी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था वो स्ट्रॉन्गेस्ट था एरियाज अराउंड द कैपिटल एंड द प्रोविंशियल सेंटर। ठीक है, प्रोविंशियल सेंटर, ये जो कैपिटल है पाटलिपुत्र, इसके आसपास में ज़्यादा कंट्रोल होगा। ठीक है, और जो प्रोविंशियल कैपिटल है वहाँ पर राजा का कंट्रोल ज़्यादा नहीं होगा। याद रखना, राजा यहाँ पर क्या गवर्नर्स अपॉइंट करेगा। देखने को मिलता है आपको कि गवर्नर अपॉइंट कर रहा है राजा। ठीक है, ये गवर्नर को बोलते हैं कुमार अमात्य, कुमार अमात्यास, कुमार अमात्य। ये बेसिकली क्या होते थे, ये राजा के फैमिली से ही होते हैं। ठीक है, ठीक है, कोई रिलेटिव हो गया तो दे वर बेसिकली फ्रॉम द प्रिंसली क्लास। दीज सेंटर्स वर केयरफुली चूजन। अब जितने भी प्रोविंस कैपिटल है वो ध्यान पूर्वक, अब राजा है वो ऐसी थोड़ी किसी भी स्टेट को या किसी भी टेरिटरी को विल अनाउंस इट एज अ प्रोविंशियल कैपिटल। देखा जाए तो तक्षशिला और जो उज्जैनी है, ठीक है, ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में, ठीक है, जितने भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट है, इफ वी गो ऑन द मैप, इफ आई कुड शो यू, सो हियर देखो उज्जैनी और तक्षशिला, ये दो बेसिकली जो स्टेट है राजा के, ये दो बेसिकली जो प्रोविंस कैपिटल्स है, आर सिचुएटेड ऑन अ प्लेस ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, है कि नहीं, है ना। इंपॉर्टेंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट्स, है ना। सुवर्णगिरी देखा जाए तो फ्रॉम हियर दे एक्सट्रैक्ट व्हाट, गोल्ड। इसको बोला भी जाता था गोल्डन माउंटेन, गोल्डन माउंटेन। सो बेसिकली द किंग एक्सट्रैक्ट और यूज टू एक्सट्रैक्ट गोल्ड फ्रॉम हियर। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर टैपिंग गोल्ड माइंस ऑफ कर्नाटका। ओके, communication along both land and riverine routes were vital for the existence of the empire. Journeys from the center to the province could have taken weeks if not months. This meant arranging for provision as well as protection for those who were on the move. It is obvious that the army was an important means for ensuring the later. Megasthenes mentions a committee of 6 subcommittees. Committee of 6 subcommittees for coordinating military activities. ठीक है, अब तुम देखो तो एक इनका प्रोविंशियल कैपिटल तक्षशिला में, हियर द अदर वन सुवर्णगिरी, द अदर वन उज्जैनी, एंड मेन कैपिटल पाटलिपुत्र, हियर कलिंगा। ओके, तो अगर मेरे को ये कैपिटल को रन करना है, सॉरी इस अंपायर को रन करना है ना, सो व्हाट आई नीड इज द कम्युनिकेशन, है ना। अगर मेरे को कम्युनिकेशन यहाँ पे स्ट्रांग हो जाएगा, सो दैट आई कैन थ्रो माई मैसेजेस टू एनी प्लेस, वेदर इट इज तक्षशिला, वेदर इट इज सुवर्णगिरी,
whether it is Kalinga, whether it is Ujjain. So if I want to control my administrative, what I need to improve is the communication. Okay. And if we see, the lands are so far away from capital. Okay, if we look at Takshila, it is situated in Pakistan in today. Uh, in today's nowadays, what we see, Takshila is situated in Pakistan. Hmm? So if we see, if we want to communicate with my governor, if the king want to communicate with his governor, so if he wants to give his message to the governor, what he would do, he would assign a messenger, and the journey would take months, weeks. Okay, it would probably take months to receive the message by governor. Okay, and the protection for the messenger, the all the provisions. Okay, while he is in move from capital to province, so all the provisions that will be provided by the king, so that his message can arrive to his destination, to the province capitals. So what we see in the Megasthenes book called Indica, he is mentioning a committee. He is mentioning a committee with 6 subcommittees. Okay, for coordinating military activity. तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, मैगस्थनीज की जो बुक है इंडिका में, उसमें मेंशन किया गया है 6 सब कमिटीज के बारे में. ठीक है ना. एक कमेटी नेवी को मैनेज करती है, दूसरी ट्रांसपोर्ट और जितनी भी सुविधाएं हैं मिलिट्री के लिए उसको मैनेज करती है. तो मैं 6 सब कमिटीज की बात कर रहा हूँ मास्टर, देखते रहना. पहली नेवी की मैनेजमेंट में देखते हैं, दूसरा ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजंस, जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, जितनी भी ट्रांसपोर्ट के लिए बुल्क कार्ट चाहिए, कैरियोट चाहिए, दे यूज टू प्रोवाइड टू द मिलिट्री. थर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फुट सोल्जर्स, है ना. देखिए सर, फुट सोल्जर्स को मैनेज करते थे. फिफ्थ, so third was responsible for foot soldiers, fourth was for horses, fifth was for chariots, and sixth was for elephants. So what, third was responsible for foot soldiers. हाँ, वो जो जमीन पे चलते हैं ना सिपाही लोग, उसके लिए. फोर्थ वॉज फॉर हॉर्सेस. अगर मेरे को कैरियोट चाहिए तो बेसिकली व्हाट आई नीड अ हॉर्स टू मेक अ कैरियोट. ओके, टू अटैच विद अ कैरियोट. फिफ्थ चाहिए मेरे को कैरियोट्स. अगर भाई साहब मेरे को रथ चाहिए, तो रथ के लिए पहले तो घोड़ा ही चाहिए. घोड़ा ही नहीं होगा तो रथ क्या करेंगे, फिर उसका मैं क्या करूँगा. सिक्स वॉज एलिफेंट्स. सो एज आई टोल्ड यू कि एलिफेंट्स वर मोर was prominent in Magad's military alliance, sorry, Magad military coup. Okay, in Magad's military, elephants was prominent. Okay, so as mentioned by Megasthenes. Okay, so Megasthenes book Indica, it mentions a committee with 6 subcommittees. One looked after the navy, second managed for transport and provisions, and third was responsible for foot soldiers, fourth for horses, fifth for chariots, and sixth for elephants. And if we look at the activities of second subcommittee, who was managing transport and provisions, so now what he has to do, he has to manage all the provisions.
Okay, arranging for bullock carts to carry equipments. So to carry equipments of all weapons or tools that is needed by the army will be carried or will be in responsibility of second management team. Okay, second management committee. Procuring food for the soldiers and fodder for animals. So if army is going for a battle, they basically need the basic necessity of an army is what? Food. So to so the basic need of an army is food. So the work of second subcommittee was purchasing or procuring food for soldiers and fodder for the animals, because as we know, animals don't work on fuel. Huh? Animals don't work on fuel. They don't need petrols or diesel to work or to move from one place to another. What they basically need is fodder. Okay, and and the other work and another work of second subcommittee was recruiting servants and artisans to look after the soldiers. So what basically is this paragraph is talking, that there was a committee consist of six subcommittees. One was one subcommittee was for navy, second was for transport and provision, third was for foot soldiers, fourth was for maintaining of horses, fourth was for maintaining horses, fifth was for carriots, because if we need chariot, basic necessity for making a chariot is horse. Okay, so if we want to create or construct or build a chariot, we basically need a horse for it. Then sixth part was sixth subcommittee managed elephants. So as I have told in the prior lecture, that elephants was so prominent in the military or militia of Magad army. Okay, and the paragraph also saying that the work of the second subcommittee was quite a bit quite a big wider, or they had to do lot of work except transport and provision, because if we look in transport and provisions, we can see there can be lots of work as regard of transport and provisions. So what are these works? So these works are basically arranging for bullock carts to carry equipments, procuring food for soldiers and fodder for animals. Because if we don't purchase food for soldiers, how will they move from one place to another, or how will they work for the army? They'll stop doing they'll stop doing battles. And what will happen in the end? The king will lose the full whole match with another king. Okay. So procuring food and fodder for animals and recruiting servants. Okay, so if any necessities the comes in comes in during transport and any work, so they basic need the basic necessity for transport and provision was servants. Okay, so what managing of distribution of foods, they basically need servants and artisans. So and artisans such as dancers who can look after the soldiers and can entertain them. Okay, because the journey is so long for them. Asoka also tried to hold his empire together by propagating dhamma, the principle of which, as he have seen, were simple and virtually universally applicable. This, according to him, would ensure the well-being of a people in this world. And the next special officers, known as Dhamma Mahatma, were appointed to spread the message of Dhamma. So now Asoka, what he did, okay, to consolidate or to hold his empire, what he did, he started propagating Dhamma. Okay, so what is in this Dhamma kind of stuff? So I have already told you that it consists of respecting elders and show generosity towards Brahmins and those who renounce the lively world.
lively world or the comfortable or the comfort zone, who has left the comfort zone. So Ashoka says that we should have generosity towards them. Third is treating your slaves and servants kindly. Okay, so these were the basic part of Dhamma. And what he did now, okay, he appoint Dhamma Mahatmas. So what was the work of Dhamma Mahatma? So they basically what they do, they propagate Dhamma all over the subcontinent and also out of the subcontinent too. Okay, so we can see that the propagation of Dhamma was taken by Ashoka to Sri Lanka by his daughter and son, his daughter Sanghamitra and his son Mahindra. They took responsibility of propagating Dhamma to Ceylon. Okay, so we see Ashoka appoint his daughter and son, his daughter and his son to propagate Dhamma in Ceylon, nowadays known as Sri Lanka. Okay. How important was the empire? So if we see that how important was the empire, okay, was that important or not? So when historians began reconstructing early Indian history in the 19th century, the emergence of the Mauryan Empire was regarded as a major landmark. So होता क्या है कि जब हिस्टोरियंस इंडियन हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने का कोशिश करते हैं 19th सेंचुरी में, व्हाट वी सी कि वो आए थे ना जॉन मार्शल भाई साहब, तो ही सीज कि जो मॉडर्न एम्पायर है, ये मॉडर्न एम्पायर बेसिकली इमर्ज एज अ लैंडमार्क फॉर इंडियन हिस्ट्री. इंडिया वाज अंडर ब्रिटिश एम्पायर, क्योंकि कॉलोनियल रूल के अंदर थे. वी ऑल नो वी वर पार्ट ऑफ कॉलोनियल रूल इन द 19th century. 19th and 20th century, Indian historians found the possibility that there was an empire in the early India, both challenging and exciting. So 9th century and early 20th century, we can say early 50s, 20th century में वो 50s वाला नहीं होता वो, we can say under 1950s के पहले वाला time, in the early period of 20th century. Indian historians found possibility that there was an empire in early India, so they found an evidence. Okay, so what he says, the empire was both challenging and exciting. Also, some of the archaeological finds associated with the Mauryas, including stone sculptures, were considered to be examples of spectacular art typical of empires. Many of these historians found the message of Ashokan inscriptions very different from that of most other rulers, suggesting that Ashoka was more powerful and industrious, also more humble than later rulers who adopted grandiose titles. So it is not surprising that nationalist leaders in the 20th century regarded him as an inspiring figure. So basically, what happens? We all know that we were a part of colonial rule, and as a part of colonial rule, there was Archaeological Survey of India, basically founded or basically were part of British British rule. Archaeological Survey of India was under the British rule. Okay. तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तो ब्रिटिश रूल के अंदर ही काम करता था, है ना. तो 19th और 20th सेंचुरी में इंडियन हिस्टोरियंस को दिखता है कि भैया एक अंपायर था जो बहुत ज़्यादा ही मतलब डाइवर्स था, बहुत ज़्यादा ही सबसे डिफरेंस था. ठीक है, तो मौर्यास का स्कल्पचर मिलता है, स्टोन स्कल्पचर मिलता है, ठीक है, आर्ट मिलता है,
है ना। So historian says that their art and sculpture was quite a bit different from the earlier empires or later empires that was mm, came into existence after Mauryan Empire, है ना। कहते हैं कि जो मौर्यन एम्पायर के बाद में आने वाले एम्पायर थे उनसे थोड़ा सा ये अलग दिखता है हमको, ठीक है। तो दैट इज़ वाई अशोका वॉज मोर पावरफुल एज सजेस्टेड बाय आर्कोलॉजिस्ट, ठीक है। एज वेल एज हम्बल। हम्बल क्यों, तो वो अपने एक पिलर इंस्क्रिप्शन में लिखवाता है कि मैं अपने लोगों को प्रति, मतलब आई एम सो कंपैशनेट, ठीक है। आई एम सो कंपैशनेट टुवर्ड्स माय पीपल, ठीक है। ये लिखवाता है कि हालचाल पूछता है कि भाई क्या हाल है तुम लोगों के, ये बताओ मेरे को। मतलब ही वॉज सो, मतलब ऐसा दिखाता है कि भैया हम लोग बहुत सोचते हैं तुम्हारे बारे में, लोगों को लिखवाता है अपने, इसको अपने राज्य के लोगों के लिए लिखवाता है कि यार मैं तो बहुत ज़्यादा तुम लोगों के बारे में सोचता हूँ, कैसे हो तुम लोग, ऐसा करके मैसेज नहीं होता। सो वो कहते हैं कि वो लेटर रूलर जितने भी आए, जैसे कि एक रूलर आता है कनिष्क, ठीक है, कुषाण डायनेस्टी का, वो खुद को डिवाइन किंग कहता है। व्हाट इज के कि भैया मैं तो देव पुत्र हूँ, देव का ही पुत्र हूँ, भगवान का बेटा हूँ भाई मैं, देख लो, ठीक है। वैसे तो हमारे अशोका ने भी कुछ कमी नहीं छोड़ी थी। ही ऑल्सो टुक अ ग्रैंडियस टाइटल प्रियदर्शी और पियदर्शी। ही वाज सेइंग दैट कि भाई आई एम बिलव्ड ऑफ गॉड, भगवान का बहुत प्रिय हूँ मैं तो, ठीक है। सो ही इंस्पायर्ड लॉट ऑफ लीडर्स एंड देन व्हाट हैपेंस। Yet, how important was the empire? It lasted for about 150 years, which is not a very long time in the vast span of the history of the subcontinent. Besides, if you look at map 2, you will notice that the empire did not compass the entire subcontinent, and even within the frontiers of the empire, control was uniform, not uniform. By the 2nd century CE, new chiefdoms and kingdoms emerged in several parts of the subcontinent. अब ये तो पता चल गया कि भैया एक अंपायर रूलर था, ये था वो था। अब ये बताओ कि कितना इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी भी है इसको पढ़ना, यूं ही पढ़ रहे हैं। तो किताब लिखती है कि ये जो अंपायर है, लेट मी टेल यू द टाइम्स ऑफ दिस अंपायर। सो 321 BCE में चंद्रगुप्त मौर्य इसका नींव रखते हैं, एंड द लास्ट अंपायर ऑफ देयर kinfolk was Brihadratha. Brihadratha was the last empire of Mauryan dynasty. He was killed by Pushyamitra Shunga. Pushyamitra Shunga. He was the governor of. He was basically the part of Mauryan Empire, working under the Mauryan Empire. And एक दिन इन्होंने सोचा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा वीक हो गए, तो बस उड़ा दिया इनको, ठीक है। तो ये लोग बोलते हैं कि 150 साल तक इन्होंने रूल किया। एक लंबा टाइम तो नहीं है 150 साल के कहने मतलब ये है, लेकिन देखा जाए तो मैप 2 को देख के लोग बोल रहे हैं कि यार ये लोग मतलब इतना इनका अंपायर तो पूरे सब कॉन्टिनेंट पे भी रूल नहीं कर पाया, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ना, जो ये है ना, ये छोड़ो क्या बनाऊँ मैं, मतलब समझ जाओ कि इंडिया के पूरा सब कॉन्टिनेंट है। और उस टाइम तो फ्रंटियर, उस टाइम तो कोई बाउंड्री कुछ नहीं था। सो दे वर नॉट पावरफुल एज मेंशन्ड बाय योर बुक, भैया ऐसी बात है। फिर 2nd century BCE में जब इनका जो मौर्यन एम्पायर, ये मौर्यन डायनेस्टी का दी एंड होता है, तो बहुत सारे चीफडम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। बहुत सारे चीफडम आते हैं पूरे सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। तो आज का लेक्चर यही था। लेट्स कंक्लूड दिस लेक्चर हियर। नया लेक्चर है पार्ट 3 होगा, उसमें हम पढ़ेंगे न्यू नोशंस ऑफ किनशिप। अब ये क्या है, तो आफ्टर या फिर बोलेंगे पोस्ट मौर्यन,
आफ्टर मौर्यास डिक्लाइन, है ना, हम क्या होता है पूरे रीजन में वो पढ़ने वाले हैं। नहीं है? ये जो छोटे छोटे बॉक्सेज है, ये जो ये वाले हैं, ठीक है, वी विल डिस्कस इन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जब हम पूरा एकदम ये वाले स्लाइड्स जो है ना ये सब खत्म कर देंगे, ये वाले, ठीक है, देन वी विल डिस्कस ऑन दैट। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करो एंड गॉड ब्लेस यू, मन लाग पढ़ो।